The country has been witnessing an all-time high inflation, never been witnessed in a decade, while the country was also witnessing a 9% of overall inflation. We are witnessing an 18% inflation on food items. While on one side that the Prime Minister says that the country is seeing an 8% growth, it is meaningless because a common man is yet suffering. The fact remains, and it's very unfortunate, that the economist Prime Minister is now proven to be a complete disaster on the price front. And we feel that the BJP feels that he has let down the nation on this front. To put it straight, the Prime Minister and his office is clueless what to do to rein in prices. The actions initiated by the Prime Minister's office is a mere eyewash, and it seems he is completely unaware of the ground reality. The most interesting aspect is when the Prime Minister's office and the Prime Minister's media advisor himself has admitted that the prices are whopping, they are at unacceptable limits, and further stating that the Prime Minister's office is monitoring, the BJP would like to ask, what is the Prime Minister's office monitoring? What is it all about? They have come out with another alibi that these food items are not held in public stocks. Well, the fact remains that all throughout these essential items were never placed in food stocks. There was no public stocks made for them. And even on those items which are on public stocks, like onion, they failed to monitor it completely. It is also very obvious that the meeting chaired by the Prime Minister, the Agriculture Ministers blamed the Exports Minister, the Commerce Minister, for not acting in coordination, for not acting in tandem. And this is happening all under the nose of the Prime Minister. You will say the PM is now attempting to hoodwink a common man, and I'm sure a common man is not going to take it lying low. The government has to intervene and find a solution. The BJP will carry on its crusade against the government across the nation on price rise and corruption. इसको हिंदी में करते हैं? हम जानते हैं कि आज इस देश में जो खाद्य सामग्रियों की महंगाई का दर है वो 18% है, जो पिछले दशक में या उससे पहले भी सबसे अधिक है। इतना ही नहीं, जब हम जानते हैं कि ओवरऑल इन्फ्लेशन, जो महंगाई का जो पूरा स्वरूप है, लगभग जो 9% है, उसमें खाद्य सामग्रियों की महंगाई लगभग 18% है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है, एक ऐसी ऊंचाई है जो इस देश ने कभी नहीं देखा है। परंतु प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे विकास का दर 8% है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये 8% विकास के दर का कोई माने नहीं है। जब महंगाई एक तरफ 18% है तो 8% विकास दर का कोई मायने नहीं है। प्रधानमंत्री ने इस पूरे देश को एक सदमा पहुंचाया, खास करके वैसे व्यक्ति जो अपने आप में एक आर्थिक विशेषज्ञ हैं, पूरी दुनिया उनके बारे में जानती है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि देश के प्रधानमंत्री एक भयंकर विभीषिका के रूप में दिख रहे हैं, और मूल तथ्य यह है कि महंगाई को रोकने में प्रधानमंत्री पूरी तरह से असफल रहे हैं। इसमें चिंता का विषय यह भी है कि प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार ने कहा कि यह महंगाई अप्रत्याशित है। स्वयं प्रधानमंत्री के कार्यालय के लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि यह महंगाई अप्रत्याशित है, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हम इस पर निगरानी रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी जानना चाहेगी कि इस महंगाई की कौन सी निगरानी देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय या तो प्रधानमंत्री रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जानना चाहेगी। और जब प्रधानमंत्री बैठक बुलाते हैं, उस बैठक में कृषि मंत्री कहते हैं कि वाणिज्य मंत्री अपने मन की कर रहे हैं, निर्यात अपने मन से कर रहे हैं, तो ये सरकार ऐसी है जिसके दाएं हाथ को नहीं पता है कि उसका बायां हाथ क्या कर रहा है। और इसका पूरा का पूरा प्रकोप
एक सामान्य आदमी को झेलना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री इस देश के लोगों को झांसा दे करके जिस आम आदमी के नारा पर देश की कुर्सी पर आए थे दोबारा, आज उस देश के लोगों के आंखों में आंसू बहा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी महंगाई के खिलाफ अभियान और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान को पूरे देश में लेके चलेगी, क्योंकि ये सरकार आम लोगों से कट चुकी है, आम लोगों से हट चुकी है। इसके बाद दूसरा भारतीय जनता पार्टी समझौता ब्लास्ट और मालेगांव ब्लास्ट के बारे में जो विभिन्न तथ्य उभर के आ रहे हैं उस पर अपनी टिप्पणी देना चाहेगी। और जैसा कि हम लोगों ने सुना था कि मालेगांव ब्लास्ट में समझौता ब्लास्ट में कई बार जो तहकीकात करने वाली एजेंसियां हैं उन्होंने कहा कि इसमें, एक बार तो उन्होंने कहा इसमें सिमी का हाथ है, एक बार उन्होंने कहा कि इसमें डेविड हेडली की पत्नी ने जो बयान दिया था, फैज़ा ने, जो इस्लामाबाद में अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी, उसमें डेविड हेडली का नाम लिया था। और अब स्वामी असीमानंद के बयान पर जो 164 का बयान है उस पर यह कह रही है कि इसमें असीमानंद का हाथ है। जहां तक आपको स्पष्ट होगा कि समझौता ब्लास्ट में महाराष्ट्र पुलिस ने, महाराष्ट्र के एटीएस ने सफदर नगोरी, कमरुद्दीन नगोरी और आमिल पराग, ये सबको गिरफ्तार करके ले गई थी और उस समय बयान दिया था। और महाराष्ट्र के एटीएस ने 2200 पेज का चार्जशीट जमा किया था, जो मोकोका कोर्ट, महाराष्ट्र में जो इस तरह के क्राइम के लिए जो कोर्ट है, उसने सौंपा था। आज फिर मोकोका कोर्ट कह रही है कि जो तथ्य आ रहे हैं उसके आधार पर फिर से उसकी जांच की जाए। ये 2008 की घटना के बारे में हम भारतीय जनता पार्टी जानना चाहेगी कि ये क्या सत्य है। एक तरफ सीबीआई कुछ कह रही है, एक तरफ जो लोग अभियुक्त थे, जिनको उन केसों में पकड़ा गया था, उसमें अभियोग लगाया जा रहा है कि इसमें सिमी का हाथ है। फिर उसके बाद ये आरोप लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान के वैसे तत्वों का हाथ है जो आतंकवादी हैं। उसमें डेविड हेडली की पत्नी फैज़ा का बयान की टिप्पणी आ रही है और फिर अब असीमानंद की चर्चा की जा रही है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि सीबीआई हो या सरकार हो या महाराष्ट्र की कांग्रेस की सरकार हो या फिर दिग्विजय सिंह के बयान हो, ये सभी निश्चित तौर से किसी न किसी रूप से महंगाई से देश का ध्यान बांटने के लिए, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से देश का ध्यान बांटने के लिए ये विवादास्पद और विवादपूर्ण परिस्थितियों की चर्चा करके देश के लोगों का और कहीं ना कहीं वैसे संगठनों का नाम लाने का प्रयास कर रहे हैं जो देशभक्त संगठन हैं, वैसे लोगों का नाम लाने का प्रयास कर रहे हैं जिनका इनसे कुछ कुछ दूर दूर तक लेने का संदर्भ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये जो कॉकटेल है समाचारों का, तहकीकात का और जो सरकार की नीति है, उस पर हम देश के लोगों की ध्यान आकृष्ट करेंगे और साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार ऐसे तथ्यों को ला करके देश के लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि देश के लोग ऐसे प्रयासों का डटकर जवाब देंगे। इंग्लिश में करते क्या? Is it required? Well, the Bharatiya Janata Party, after assessing the various versions coming out in the media, the investigating agencies, we are slightly amused, we are taken aback, because in the Malegaon blast, in the Samjhauta blast, we had heard that there were arrests made of those people who were a part of the banned organization called SIMI. There were arrest made, Safdar Nagori, Kamruddin Nagori, Amil Parag were arrested. Then we have also heard the statement and read the statement of the US investigating agencies when they had heard and talked to the estranged wife of David Headley, Faiza, and that too in Islamabad, where she had mentioned that in these blasts she had heard and she was aware of such actions being taken by Headley. And now we have a third statement by Asimanand where he purportedly has been charged of being involved in Samjhauta blast and Malegaon blast.
We are all very confused, and especially in the backdrop when Mokoka court in Maharashtra has given the same blast case to CBI for an investigation post Asimanand statement, where the fact remains that a 2200 page charge sheet was already submitted in the ATS court by the ATS to the court and re-investigating. This creates a shroud of suspicion as to the steps taken by the investigating agencies, as to the intent of the government, and also on the intent of the CBI, trying to blame certain organizations who are nationalist. It seems that the government is trying to make a cocktail mainly to divert the attention of the nation from what the nation is witnessing on the price front, what the nation is witnessing on the corruption front by the Congress party and the allies. I'm sure the people of this country and the BJP would categorically state that the people will definitely give a befitting reply to the intent to mislead the nation. जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस प्रकार के बयान देकर के कश्मीर के मुख्यमंत्री और उनके साथ JKLF के वो तत्व जो अलगाववादी हैं, वैसे लोगों को ताकत और बल देंगे जो इस देश में अलगाववाद, जो देश के बाहर बैठे वैसे ताकतों को, जो सरहद के पार बैठे हैं, उनको ताकत मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी अपील करेगी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से कि जो नौजवान राष्ट्र प्रेम से जुड़ करके, राष्ट्र भावना से जुड़ करके लाल किले पर झंडा फहराना चाहते हैं, वो भी 26 जनवरी को, हम चाहेंगे कि सरकार उसका स्वागत करे और जो संभव कदम हो इस ऐतिहासिक दिन पर लाल चौक पर झंडा फहराने में हर प्रकार की सहूलियत प्रदान करें। भारतीय जनता पार्टी की नींव उसी लाल चौक और उसी कश्मीर में ऐसे ही विषयों के खिलाफ, ऐसे ही अलगाववाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का नींव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में रखा गया था और हम कतई किसी के बयान से भारतीय जनता पार्टी के लोग, कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कतई विचलित नहीं होंगे। ये यात्रा प्रारंभ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस कार्यक्रम को कलकत्ता में प्रारंभ किया है और हम मजबूती के साथ देशभक्तों की तरह इस कार्यक्रम को लाल चौक पर संपन्न करेंगे। The Food Security Bill, the report of the Rangarajan Committee which has come now, has dismissed the stand taken by the National Advisory